So all the students, today we are discussing an important topic of pharmacology vitamins. So what are the definition of vitamin? We will be discuss about the what is the vitamin, what is the classification of vitamin. So why we are required to have a vitamin and what is the important role of a vitamin. So let's start about the what is the vitamin. So vitamins are defined as a small organic molecule present in the diet which are the required in the small amount. So most of the vitamins are not synthesized in the body. So and they must be supplementally we are need take to a vitamins in the diet form. So however few vitamins are synthesized in the body, so most of them are the present in the diet, such as some are present in the precursors. So what is the precursors or what is the form of precursors? So the precursors form of the vitamins are called as the provitamins. So in the body these provitamins are converted into vitamins. So next one is the classification of vitamins. So vitamins are divided into the two groups. First one is the fat soluble vitamin, second one is the water soluble vitamin. So let's start what about the fat soluble vitamins. So fat soluble are the vitamins like vitamin A, D, E and K. So they have some common property like these are water soluble, require bile salt for the absorption, stored in the liver and so stable to a normal cooking condition. So excrete in the phase like a body waste discharge through the anus. So these are the excrete of these vitamin like a fat soluble vitamin. So next one is the water soluble vitamin. So water soluble vitamin, these are a member of vitamin like a B complex and vitamin C. So they are a common property like a water soluble, accepted vitamin B12, so unstable to a normal cooking condition. So these are vitamin excrete in the body like a excretion or elimination to the body like a excreted by the urine. So mainly these are vitamins are excreted in the urine with the help of the kidney like filtrations with the help of unit of the nephron is the main fundamental unit of like a filtrations or reabsorption of the these are type of the drugs, these type of the vitamins. So mainly these are water soluble vitamins are mainly soluble in vitamins. So क्या होगा जब फाइनल में जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतनी बॉडी इसको ऑब्जर्व कर लेगी, देन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लाइक फार्माकोकाइनेटिक सॉरी. सो ऑब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन. फर्स्टली क्या होगा, जितनी रिक्वायरमेंट है जितने विटामिन ऑब्जॉर्व होंगे बॉडी में उतने डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. तो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मेटाबोलाइज होने के बाद जितने विटामिन वेस्टेज हैं वो एक्सक्रीट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द किडनी. सो किडनी रेनल सिस्टम के थ्रू उसको क्या किया जाएगा, एक्सक्रीट एलिमिनेशन किया जाएगा, फिल्ट्रेशन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ यूनिट ऑफ द किडनी लाइक नेफ्रॉन उसको फिल्ट्रेट कर देगा और बॉडी से वॉश आउट कर देगा थ्रू बाय यूरिन. सो अगेन आई विल डिस्कस अबाउट द vitamins, classification of vitamins. So vitamins are divided into a two part. First one is a fat soluble, second one is a water soluble. So what is the fat soluble? Again I will discuss each and everything about the water soluble. So these are a vitamin like a vitamin A, D, E and K. These are four vitamins under the category of fat soluble. So they are some common property like a fat soluble. So vitamin A, D, E and K, these are four vitamins in the fat soluble vitamin. Second one require bile salt for the absorption. इनको क्या पड़ेगा, bile salt की नीड पड़ेगी फॉर absorption के वास्ते, स्टोर्ड होंगे लीवर में. तो bile salt कहाँ से आएगा, लीवर से, तो स्टोर्ड भी होंगे लीवर में. एक्सक्रीट किसके थ्रू हो जाएंगे, फेसिस के थ्रू. फेसिस लाइक ए बॉडी वेस्ट डिस्चार्ज थ्रू द एनस. सो नेक्स्ट वन इज दी, नेक्स्ट कौन से हैं, वाटर सॉल्युबल. वाटर सॉल्युबल विटामिन
लाइक ए दीज आर ए मेंबर ऑफ विटामिन, लाइक ए इसमें कौन से आ जाएंगे, बी कम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, दीज आर ए 2 विटामिन अंडर द कैटेगरी ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन। सो इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी, फर्स्टली ये वाटर में सोल्यूबल हो जाएंगे, सेकंड वन इनमें B12 भी आ जाएगा, थर्ड वन इज अनस्टेबल हो जाएंगे नॉर्मल कुकिंग कंडीशन पे। वो क्या है, कुकिंग कंडीशन पे स्टेबल हैं, ये अनस्टेबल हैं। लास्ट पॉइंट इज अगर बॉडी में जितने विटामिन की रिक्वायरमेंट है उसने बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया, जो वेस्टेज हैं वो किसके थ्रू वॉश आउट होंगे, यूरिन के थ्रू, तो एक्सक्रीटेड इन दी यूरिन। सो रोल क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस रोल इन ऑफ विटामिन। सो विटामिन की इम्पोर्टेंस क्या है और इसके फंक्शन क्या है। सो इसमें फार्माकोलॉजी फंक्शन क्या है, बॉडी क्यों इसकी नीड रहती है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस लाइक एज वेल एज व्हाट इज द प्ले ऑफ इम्पोर्टेंस प्ले रोल इन द विटामिन, सो फॉर व्हाट इज द नीड। सो विटामिन आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ए सेल। ग्रोथ में हेल्प करते हैं, बॉडी को मेंटेन रखते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि सेल की रिपेयरिंग करनी और बॉडी को ग्रोथ के लिए, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए। सो हाउएवर दे आर नॉट यूज फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, सो दे आर नॉट यूज फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। सो फैट soluble vitamins are the required for the normal color vision like a blood clotting, bone formation and maintain of a membrane structure. So these are the role of or these are the function of fat soluble vitamin. So again I will discuss what is the main role of the vitamin or why need for the vitamin or what is the role play vitamin. So like a vitamin are essential for the growth, maintenance and reproduction. So है like a fat soluble vitamin क्या करते हैं, इनके function क्या है। So fat soluble vitamins are sorry. So fat soluble vitamins are the required for the normal color vision like a blood clotting, bone formation, maintain of a membrane structure. I think most of water soluble vitamin, what is the function of water soluble vitamin, like a coenzyme or protection group of the survey enzyme involved in the carbohydrate, lipid and amino acid metabolism, etc. So these are the function of water soluble. Again I will discuss most of the water soluble vitamin function as coenzyme or prostatic group of survey enzyme involved in the carbohydrate, lipid and amino acid metabolism. So these are the function of water soluble. So vitamin A and D act as the steroidal hormone. So deficiency of the, so what is the cause, क्या होगा कारण अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी फैट सोल्यूबल विटामिन की, तो उसके कारण कौन सी डिजीज से पेशेंट सफ़र कर सकता है। सो डेफिशिएंसी ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन प्रोड्यूस नाइट ब्लाइंडनेस, skeleton deformation and hemolysis. So these are the cause when the deficiency of fat soluble vitamin. So next one is the again I will repeat biological importance. So deficiency of the fat or water soluble vitamins like produce beriberi, ग्लोसरी एंड प्रेगनेंसी में और एनीमिया में और यूरिक एसिड में प्रॉब्लम आ जाएंगी। लाइक के फैट सोल्यूबल विटामिन कम है तो एनीमिया की कमी हो जाएगी। और नेक्स्ट वन इज दिस, सम विटामिन आर एनालॉग्स आर यूज एज ए ड्रग। तो सम विटामिन को हम एक एनालॉग भी यूज़ कर सकते हैं एज ए ड्रग के तौर पे, लाइक फॉर एग्जांपल फोलिक एसिड। सो फोलिक एसिड को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए एंटी कैंसर एजेंट और एंटी कैंसर इसमें मतलब लाइक फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें ब्लड की फॉर्मेशन करने के लिए, यूज़ इन कैंसर पेशेंट में। कैंसर पेशेंट में क्या होता है, जो सेल हैं वो अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, तो उसमें क्या हो जाता है डेफिशिएंसी हो जाती है और जो सेल की नॉर्मल स्ट्रक्चर है
वो चेंज हो जाती है। तो इस कंडीशन में हमें क्या पड़ता है कि हमें न्यू सेल की रिपेयरिंग करने के लिए, न्यू सेल को बनाने के लिए, रेड ब्लड सेल के लिए हमें ब्लड की नीड पड़ती है। तो सम विटामिन आर लाइक यूज़ कर सकते हैं हम एनालॉग्स लाइक फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड क्या करता है, हमारा न्यू नए ब्लड में WBC में हेल्प करता है, ठीक है। तो हम उसको एज ए यूज़ कर सकते हैं एंटी कैंसर एजेंट। So moderate is consumption of some vitamins is found to decrease occurrence severity of some disease, like for example vitamin E and vitamin D consumption at the moderate like a reduction of indicates of the cancer or कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। तो हम विटामिन ए और डी में कंजप्शन कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं, और रिड्यूस करने के लिए किसको, साइन एंड सिम्टम को रिड्यूस करने के लिए कैंसर में एंड एज वेल एज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में भी। सो अदर बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंस इसकी क्या होगी, जब हम कंजप्शन करते हैं ऑफ विटामिन सी दी इन सिग्निफिकेंटली अमाउंट रिड्यूस इज दी severity of cold, so they slow down is aging process also. However, excretion consumption of a fat soluble vitamin is lead to a toxicity. तो जब हम कंजप्शन करते हैं विटामिन सी की सिग्निफिकेंटली अमाउंट जो है डिक्रीज हो जाती है, तो कुछ विटामिन जो है वो अपना साइड इफेक्ट भी शो कर सकते हैं, लाइक के जब वो ज़्यादा अमाउंट में होंगे तो वो टॉक्सिसिटी लेवल शो कर सकते हैं। So vitamin B12 like folic acid and vitamin C are the beneficial to a कोलिनर्जी आर्टरी डिजीज पेशेंट। सो विटामिन बी कम्प्लेक्स हम फॉलिक एसिड और विटामिन सी बेनिफिशियल होता है आर्टरी डिजीज़ में, हार्ट पेशेंट की कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में। सो ये मेनली क्या कर देता है, लोअर प्लाज्मा हीमोसाइटिक लेवल। सो नेक्स्ट वन इज दी वाटर सोल्यूबल विटामिन और बी कम्प्लेक्स लाइक ए मेंबर ऑफ ए विटामिन बी कम्प्लेक्स लाइक ए thiamines or other called is vitamin B1, riboflavin like other name is vitamin B2 and pyridoxine like B6, or these are the other name like biotin, folic acid. These are the under the category of water soluble vitamin, or we are called the name of like thiamine, riboflavin, pyridoxine, folic acid, biotin. These are the member of a vitamin B complex. So what is the function of a B complex, what is the chemistry behind it, like other name is thiamine. So chemistry क्या है इसके पीछे, so it is the heat lab and sulfuric containing vitamin. So it is a contain पैरमिडीन रिंग एंड थायाडोल रिंग। इसमें क्या होती है, एक पैरमिडीन रिंग लगी होती है और एक थायाजोल रिंग लगी होती है, किसमें, विटामिन B1 में, जिसको अदर नेम थायामीन कह सकते हो। तो विच आर दी ज्वाइंट बाय द मिथाइल ब्रिज, तो इसके एक मिथाइल का ब्रिज टाइप बना होगा। सो इट इज़ ए हाईली अल्कलाइन सेंसिटिविटी। सो ऑब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, सो इट इज़ अब्जॉर्ब इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। मेनली विटामिन जो बी कम्प्लेक्स है तो वो मेनली सॉल्युबल किस में होंगे, अब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे, इट इज़ अब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एंड स्मॉल डिफ्यूजन। सो देन इट इज़ ए रिच्ड लीवर थ्रू बाय सर्कुलेट। अब देखो क्या है जो विटामिन बी है, फर्स्टली क्या है इसमें, एक तो प्रिमिडीन रिंग और थायाजोल रिंग लगी होगी। सो दे आर जी ज्वाइंट, ये दोनों रिंग एक ज्वाइंट होंगी बाय किसकी तरह, मिथाइलिन ब्रिज की तरह। तो सेकंड वन ऑब्जॉर्व कहाँ होगी और डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, मेनली इट इज़ ऑब्जॉर्व होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की तरह एंड सिंपली डिफ्यूज हो जाएगी। देन इट इज़ ए रीच्ड मतलब ब्लड में बहुत क्वांटिटी में रीच्ड होगी, लीवर में और लीवर के थ्रू सर्कुलेट होगी, ठीक है। तो फंक्शन क्या होंगे इसके, फंक्शन क्या होंगे, थायामीन जो है इट इज़ द एक्टिव फॉर्म द थायामीन इज फॉर्मेशन बाय द थायामीन इन द प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन बाय कैटालाइज एंड मेनली इनके रिच सोर्स हमें कहाँ से मिलता है, विटामिन बी हम कहाँ से, अगर रिक्वायरमेंट इसकी हमें पड़ती है, बॉडी को नीड पड़ती है तो हम
कहाँ से ले सकते हैं? फर्स्ट वन इज ए सोर्स ऑफ विटामिन बी कम्प्लेक्स, लाइक ए थायामीन के कौन से सोर्स हैं? फर्स्ट वन इज ए रिच सोर्स, कहाँ से मिलेगा? राइस से, वीट से और जीस्ट से। दीज आर ए 3 रिच सोर्स ऑफ थायामीन और बी कम्प्लेक्स विटामिन, लाइक ए B1 कम्प्लेक्स। B1 विटामिन कहाँ से मिलेगा हमें? राइस से, चावल से, वीट से एंड जीस्ट से। तो गुड सोर्स कहाँ से है इसका? ऑयली सीड से, लाइक ए नट से। और फेयर सोर्स कहाँ से मिलेगा? मीट से, लीवर से एंड एग से एंड फिश से। सो दीज आर दी 3 सोर्स ऑफ विटामिन B1 और थायामीन। सो मेनली रिच सोर्स क्या है इसका? राइस, वीट एंड जीस्ट। सो दीज आर 3 रिच सोर्स ऑफ दी विटामिन B1। सेकेंड वन इन गुड सोर्स क्या है इसका? ऑयली सीड, लाइक ए नट। एंड सबसे कम किस में मिलेगा? मीट में, लीवर में और एग में एंड फिश में। सो सेकंड B2 विटामिन किस में मिलेगा? मेनली B2 विटामिन जो है सोर्स है इसके मेनली ग्रीन लीफ वेजिटेबल, जीस्ट, एग, मिल्क, मीट आर दी गुड सोर्स। तो B2 विटामिन किस में मिलेगा? B2 विटामिन मिलेगा हमें मेनली ग्रीन लीफ वेजिटेबल में, जीस्ट में, एग में, मिल्क में। दीज आर दी रिच सोर्स। सो अदर क्या है? अदर हमें किस में मिल सकते हैं जी? रूट वेजिटेबल में, जड़ों वाले जो वेजिटेबल होते हैं उसमें, फ्रूट में। सो दीज आर दी सोर्स ऑफ विटामिन B2। So thank you very much. Next part we will be discuss other left vitamins. So thank you very much.